السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور مجاہد خان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان اضلاع میں سیلاب زدگان کے لیے تعمیر شدہ گھروں کا آج اسلام آباد میں افتتاح کیا۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے پاکستان کا لاہ عمل پیش کرنے کی خاطر اگلے مہینے عالمی کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ آج سارک منشور کے دن کے موقع پر شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان سارک کے احیاء کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان افغان عوام کی فلاح و بہبود اور خوشحالی کے فروغ کے لیے تمام کوششوں کی پختہ حمایت کرتا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل پاکستان کے 3 روزہ دورے پر ہفتے کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان تعاون بڑھانے کے مواقع کا خیر مقدم کرتا ہے۔ دفتر خارجہ نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا نوٹس لیا جائے۔ چین اور سعودی عرب نے دو طرفہ تعلقات بڑھانے کے لیے سرکاری اور ثقافتی وفود کے تبادلے اور عوام کے باہمی روابط بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ اسرائیلی فوجیوں نے آج مقبوضہ مغربی کنارے میں 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا کرکٹ ٹیسٹ کل ملتان میں شروع ہوگا۔ اور کل قطر میں فیفا ورلڈ کپ میں کوارٹر فائنل راؤنڈ کا پہلا میچ برازیل اور کروشیا کے درمیان ہوگا۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ٹانگ اور ڈیرہ اسماعیل خان کے اضلاع کے سیلاب زدگان کے لیے تعمیر کیے گئے رہائشی یونٹس کا باضابطہ افتتاح کیا ہے۔ اسلام آباد میں آج ایک افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ حبیب بینک کے چیئرمین نے سیلاب زدہ افراد کی اس ہاؤسنگ اسکیم کی طرز پر 2 قصبے تعمیر کرنے کی پیشکش کی ہے، جن میں سے ایک قصبہ سندھ میں تعمیر کیا جائے گا۔ مجھے سلطان علانہ جو حبیب بینک کے چیئرمین ہیں، انہوں نے مجھے از خود کہا کہ وزیر اعظم 2 گاؤں میں بنانا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے ہمیں ایک سندھ میں ہم نے ان کو کہا کہ وہاں بنائیں، ایک بلوچستان میں، اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ فی الفور کام شروع کریں گے۔ اپنے جو پرائم منسٹر ریلیف اکاؤنٹ ہے اس میں لگ بھگ 5 ارب روپے کے فنڈز جمع ہو چکے ہیں، تو میں اس کو 10 ارب کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب 10 ارب کے ہو جائیں گے انشاءاللہ تو پھر یہ فیصلہ کریں گے کہ گھر بنانے ہیں یا ہسپتال بنانے ان صوبوں میں، وہ میں مشاورت کے ساتھ فیصلہ انشاءاللہ ہم کر لیں گے۔ صوبوں اور مرکز کی کوششوں کا اعتراف کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ آفات سے نمٹنے کا واحد حل مشترکہ اقدامات ہیں اور ہمیں مستقبل میں اس روایت پر عمل کرنا ہوگا۔ میں پاکستان بھر کے اپنے ان تمام مخیر حضرات کو جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ ان کو دولت سے نوازا ہے اور وہ خرچ بھی کرتے ہیں دل کھول کے، ان سے میں ملتمس ہوں کہ آئیں آج اس مثال کو اپنا لیں۔ یہ ٹیکسٹائل ملز ہیں، لیدر کے کارخانے ہیں، سیالکوٹ کے کارخانے ہیں، کراچی کے کارخانے ہیں، کوئٹہ کے، پشاور کے، لاہور کے، ملتان کے، فیصل آباد کے، قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے۔ اگر آپ یہ 100 گھر کے یونٹ اپنے ذمے لے لیں گے تو باخدا دنوں میں ہزاروں گھر پورے پاکستان میں تعمیر ہو جائیں گے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے سیلاب زدگان میں عارضی گھروں کی چابیاں تقسیم کیں۔ واضح رہے کہ یہ منصوبہ 24 دنوں میں 14 کروڑ روپے کی مجموعی لاگت سے مکمل کیا گیا۔ ہاؤسنگ ولیج میں صحت، تعلیم، پینے کے صاف پانی اور شمسی توانائی سمیت زندگی کی تمام سہولیات موجود ہیں۔ منصوبہ بندی و ترقی کے وزیر احسن اقبال نے اس موقع پر کہا کہ وزیر اعظم کی کوششوں سے اگلے ماہ ایک بین الاقوامی کانفرنس ہوگی جس میں سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے پاکستان کے منصوبے کو اجاگر کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں گھروں کی دوبارہ تعمیر کے لیے عالمی برادری پر زور دیا جائے گا۔ جنوری میں ایک بین الاقوامی کانفرنس وزیر اعظم کے انیشیٹو پر اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی میزبانی کے ساتھ منعقد ہوگی، جس کے سامنے ہم پاکستان میں اس سیلاب سے تعمیر نو کا پلان دنیا کے سامنے پیش کریں گے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری اس میں بڑھ چڑھ کر پاکستان کو سپورٹ کرے گی، کیونکہ یہ آفت ہماری کسی کمزوری یا غلطی کی وجہ سے نہیں آئی، یہ آفت گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آئی ہے۔
احسن اقبال نے کہا کہ ہم اس بات کا ذکر بھی کریں گے کہ جس تباہی کا ہم سامنا کر رہے ہیں یہ ہمارے اقدامات کا نتیجہ نہیں بلکہ اس کی وجہ موسمیاتی تبدیلی ہے جس میں ہمارا حصہ 1% سے بھی کم ہے۔ وفاقی کابینہ نے پیٹرولیم ڈویژن کی سفارش پر پیٹرولیم کی تلاش کے 11 منسوخ لائسنسوں کی بحالی کی منظوری دے دی ہے۔ یہ فیصلہ آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان سار کی تجدید کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ انہوں نے آج سار کے منشور کے دن کے موقع پر ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ دن جنوبی ایشیائی ممالک کے مابین علاقائی ترقی، روابط اور تعاون میں موجود ان وسیع مواقع کی یاد دہانی کراتا ہے جن سے اب تک فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ انہوں نے کہا کہ سارک ممالک کے لوگ ان مواقع سے استفادہ نہ کیے جانے کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ معذور افراد کے معاشرے کا فعال حصہ بنانا ہمارا فریضہ ہے۔ آج اسلام آباد میں خصوصی افراد کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے معذور افراد کی بہبود کے لیے فعال کردار ادا کرنے والی فلاحی تنظیموں کو سراہا۔ صدر مملکت نے کہا کہ معذور ہنر سکھانے کے پروگراموں کے ذریعے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ایک تھل انجینئرنگ جیسا ادارہ ہے اور بہت سارے ادارے ہیں جنہوں نے ہیئرنگ امپیرڈ لوگوں کو اپنے امپلائی کیا، دے فائنڈ کہ یہ بے انتہا بہتر کام کرتے ہیں، ان کو بہت ساری ایڈز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ایجوکیشن کے اندر سب کو انکلوز کریں، جن کو اسکل ڈیولپمنٹ دیا جا سکتا ہے تو نیفٹا اور ٹیفٹیک کے ساتھ اسکل ڈیولپمنٹس دیے جائیں، اور یہ کیفیت نہیں ہے کہ آپ نے ایک پرسن ود ڈسیبلٹی کو اٹھایا اور کسی جاب میں فٹ کر دیا یا چیریٹی سے کیا۔ لہٰذا یہ جو میرج ہے بٹوین اے ڈسیبلڈ person and his skills and a job created particularly for the disabled person, this is a very important marriage which has to take place. صدر نے ترجیحی بنیادوں پر معذور افراد کے لیے ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے پر بھی زور دیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان افغان عوام کی فلاح و بہبود کے لیے تمام کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ آج انڈونیشیا میں بالی میں افغان خواتین کی تعلیم کے بارے میں عالمی کانفرنس میں شرکت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خواتین کے لیے تعلیم اور فیصلہ سازی میں ان کی شرکت بہت اہم ہے۔ وزیر خارجہ نے کثیر الجہتی افغان معاشرے کی بہبود کے لیے عملی امداد کے ٹھوس پروگرام کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آج اسلام آباد میں امور خارجہ کی وزیر مملکت ہنا روبانی کھر سے ملاقات کی۔ دونوں فریقوں نے ملک کی موجودہ اقتصادی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ حالیہ سفارتی پیش رفت پر بھی بات چیت ہوئی۔ وزیر خزانہ نے مکمل حمایت اور تعاون کا یقین دلاتے ہوئے متعلقہ حکام کو اس سلسلے میں ضروری اقدامات کی ہدایت کی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے پاکستان کے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے حالیہ اخراج کے تناظر میں دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام کے لیے انسداد دہشت گردی کے قومی ادارے کے کردار کو سراہا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں نیکٹا کے تیسرے بورڈ آف گورنرز اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کی روک تھام میں نیکٹا کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ نیکٹا کو ملک میں دہشت گردی کو شکست دینے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد میں کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزیر داخلہ نے مغربی سرحدوں پر دہشت گردی کے دوبارہ سر اٹھانے کے پیش نظر تیاریاں کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ صنعت و پیداوار کے لیے وزیر اعظم کے معاون خصوصی تسنیم احمد قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان سٹیل مل ملک کا بڑا اثاثہ ہے اور اس کے احیاء کے لیے منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات ہمارے کراچی کے نمائندے الطاف پیرزادہ سے۔ آج کراچی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے تسنیم احمد صدیقی نے کہا کہ اسٹیل مل کی بحالی میں وقت لگے گا اور یہ یقین بھی دلایا کہ اس ضمن میں جتنے مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صنعتی شعبے کی بحالی کے لیے تمام ممکن اقدامات کر رہی ہے کیونکہ ملک کی معیشت میں اس شعبے کا کلیدی کردار ہے۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ گیس کی قلت کا پورے ملک کو سامنا ہے اور یہ معاملہ بالخصوص موسم سرما میں جنم لیتا ہے، تاہم گیس کی کمی پر قابو پانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ اس مقصد کے لیے پاکستان نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن منصوبہ مکمل کیا جا رہا ہے اور امید کی کہ لوگوں کو آئندہ سال موسم سرما میں گیس کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔
जापान ने पाकिस्तान पोलियो खात्मे प्रोग्राम के लिए $38,70,000 की ग्रांट फराहमी से अपनी इमदाद में तोसी की है। इस सिलसिले में आज इस्लामाबाद में यूनिसेफ और जायका के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल भी तकरीब में मौजूद थे। ये ग्रांट ज़रूरी पोलियो वैक्सीन की खरीदारी पर खर्च की जाएगी और जिससे पाकिस्तान में 5 साल से कम 1,86,10,000 बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। इस मौके पर वफाकी वजीर ने कहा कि हुकूमत 2023 तक पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम से खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस अजला में बीमारी पर काबू पा लिया गया है। जमीयत उलमा इस्लाम फे की अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मुल्क को अमन और खुशहाली का गहवारा बनाया जाएगा। आज कोयटा में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में सियासी और इक्तिसादी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की तमाम साजिशें नाकाम बना दी जाएंगी। उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि गुज़िश्ता हुकूमत ने मुल्क को आलमी सतह पर तनहा कर दिया और चीन और सऊदी अरब समेत तमाम दोस्त ममालिक के एतमाद को ठेस पहुंचाई। मुवासलात के वज़ीर असद महमूद ने कहा है कि सिंध और बलूचिस्तान में मानसून की मूसलाधार बारिशों के दौरान लोगों की मुश्किलात को कम करने में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। आज कोयटा में ज़राए इब्लाग से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बारिशों और सैलाब से मुतासर होने वाली सड़कों को 24 घंटों में बहाल करके ट्रैफिक की बिलातातुल रवानी यकीनी बनाई। उन्होंने मजीद कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अब बलूचिस्तान के बारिशों और सैलाब से मुतासर इलाकों में बहाली की सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। सऊदी अरब अगले साल हज के लिए पाकिस्तानी आज़मीन हज का कोटा 1,80,000 तक बढ़ाएगा, जो कोरोना वबा की वजह से महदूद कर दिया गया था। सेक्रेटरी मजहबी उम्मूर आफ्ताब अकबर दुरानी ने एक बयान में कहा कि सऊदी हुक्काम ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए पुराना हज कोटा बहाल करने की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत के साथ अगले महीने जद्दा में हज कॉन्फ्रेंस के दौरान तहरीरी मुआहिदे पर दस्तखत किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा है कि सूबे में ज़राई शोबे की बेहतरी के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। मज़ीद तफसीलात हमारे पेशावर के नुमाइंदे मतियुल्लाह से। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ज़री यूनिवर्सिटी पेशावर के 13वें कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खसूसी खिताब कर रहे थे। उन्होंने बंजर जमीन की काश्त के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। हाजी गुलाम अली ने कहा कि ज़री मुल्क होने की वजह से हमें खुराक की कमी का सामना है, जिसके हल के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। गवर्नर ने नौजवानों को ज़री शोबे की तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करने की भी हिदायत। बाद में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में 650 डिग्रियां और 40 गोल्ड मेडल्स भी तकसीम किए। पंजाब के गवर्नर बलीगुर रहमान ने कहा है कि बदउनवानी का खात्मा मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है। तफसीलात हमारे लाहौर के नुमाइंदे गुलाम हैदर से। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का कहना है कि मुल्क की तरक्की के लिए करप्शन का खात्मा नागुज़ीर है। ये बात उन्होंने आज लाहौर में इंसदाद बदउनवानी के दिन के हवाले से एक तकरीब से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि करप्शन मुआशरे और मुल्की मईशत के लिए नुकसानदेह है, जबकि लोग करप्शन का इर्तिकाब करते हुए अवाम के हकूक गस्ब करते हैं। निजाम में इस्लाहत लाने की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि एहतसाब का निजाम न होने से मुल्क में करप्शन के कल्चर को फरोग मिलता है। जहाँ मुआशरे की बात करते हैं, मुआशरे में करप्शन के हवाले से बात करते हैं, वहाँ उसका दूसरा पहलू ये भी है कि निजाम एहतसाब का सही ना होना तरवीज देता है या करप्शन को ना रोकने में मुआवन व मददगार साबित होता है। गवर्नर ने कहा कि हमने तुलबा की किरदार साजी के लिए तमाम शराकतदारों की मुशावरत से एक तालीमी कंसोर्शियम भी कायम किया है। पाकिस्तान में कतर के सफीर शेख सऊद अब्दुर्रहमान अस्सानी ने कहा है कि कतर पाकिस्तान से अपने बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है और दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना चाहता है। आज इस्लामाबाद में कतर के कौमी दिन के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात ठोस बुनियादों पर कायम हैं, जिन्होंने हालिया बरसों में तमाम शोबों में शानदार तरक्की की है। सफीर ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दोहा के हालिया दौरे में कतर ने पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अमीर कतर ने दोनों मुल्कों के दरमियान बरादराना और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की अहमियत पर जोर देते हुए इक्तिसादी शराकतदारी बढ़ाने की अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। सफीर ने कतर की तरक्की में 2,10,000 पाकिस्तानियों के अहम किरदार को
सराहा। इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की दावत पर हफ्ते को 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। दौरे के दौरान तंजीम के सेक्रेटरी जनरल वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और वजीर खारजा से वफ्द की सतह पर मुलाकात करेंगे। वो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर और तिजारत के वजीर से भी मुलाकात करेंगे। वो आज़ाद जम्मू और कश्मीर का भी दौरा करेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक दो तरफा बातचीत के दौरान इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल और वजीर खारजा जम्मू और कश्मीर के तनाज़े, इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे और अफगानिस्तान में इंसानी सूरत हाल समेत तंजीम के एजेंडे में शामिल मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान के साथ बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने के मौक़े का खैर मकदम करता है। वाशिंगटन में मामूल की न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कई लिहाज से अमरीका का अहम शराकतदार है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अमरीका को सिर्फ पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के आईनी निज़ाम के मफादात में दिलचस्पी है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़ोहरा बलोच ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए भारत की तरफ से की जाने वाली रियासती दहशतगर्दी पर शदीद तशवीश जाहिर की है। आज इस्लामाबाद में अपनी हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि इन हक़ाइक़ का नोटिस लें। कुछ ममालिक की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों की मौजूदगी के इल्ज़ामात के हवाले से एक सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि हम इन इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने गुज़िश्ता कई साल से दहशतगर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और खित्ते में अदम इस्तेहकाम ने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है जिसकी वजह से सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों समेत पाकिस्तान के कई अफराद ने अपनी जानें गंवाई हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर भारतीय पुष्ट पनाही में होने वाली रियासती दहशतगर्दी में भारत के बराह रास्त मुलविस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं और आलमी बिरादरी को दूसरों पर उंगली उठाने की भारतीय ज़हनीत का नोटिस लेना चाहिए। एक और सवाल के जवाब में मुमताज़ ज़ोहरा बलोच ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में ढाए जाने वाले मज़ालिम की मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि भारत ने बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक, कवानीन और इक़दार को बालाए ताक रखते हुए कश्मीरियों का इस्तेहसाल जारी रखा हुआ है। उन्होंने बैनुल-अक़वामी बिरादरी और आलमी तंजीमों पर जोर दिया कि वो भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की बिगड़ती हुई सूरत हाल का नोटिस लें। रूस से गैस और तेल की दरामद के हवाले से तर्जुमान ने कहा कि हम रूस से खाम तेल की दरामद के लिए उसके साथ राब्ते में हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात का तीसरा मरहला आज मीरपुर, कोटली और भिम्बर डिवीजन के तमाम तीनों अजला में मुकम्मल हो गया। मज़ीद तफसील हमारे मीरपुर के नुमाइंदे अली अख्तर से। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में मीरपुर डिवीजन में आज तीसरे मरहले की पोलिंग हुई। पोलिंग सुबह 8 बजे से शुरू होकर बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रही। मीरपुर डिवीजन में तकरीबन 12,38,000 के करीब वोटर्स थे जिन्होंने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। इसी तरह पूरे डिवीजन में 2,190 के करीब पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। इन इलेक्शन के दौरान अमन और अमान को कायम रखने के लिए 10,900 के करीब सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात थे। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा पर जोर दिया है कि वो तमाम रुकन ममालिक की मशावरत से भारत और उसके गैर कानूनी तौर पर ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए भारत के खतरनाक मंसूबे के खिलाफ उसके सियासी और मुआशी बाइकआउट के लिए एक मुश्तरका पॉलिसी वज़ा करें। यह अपील OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा की क़यादत में तंजीम के 5 रुकनी वफ़द के पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे से कबल की गई। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने कहा कि मोदी की फस्ताई भारतीय हुकूमत ने भारत और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। बारामूला और जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने भारतीय काबिज इंतज़ामिया की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए। जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ सहाफ़ी और कश्मीर टाइम्स की एडिटर अनुराधा भसीन ने अपनी नई तसनीफ़ में मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत की मनसूखी के बाद पेश आने वाले वाक़यात और जुल्म और तशद्दुद की अनकही दास्तानों को बयान किया है। डिसमेंटल स्टेट के उन्वान से किताब में
दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी के बाद वादी कश्मीर में रूनुमा होने वाले वाक़यात को समझने के लिए बहुत से ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद किए गए। उधर कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी हुकूमत पर गैर यकीन कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में मुनक़्क़िद होने वाले प्रोग्रामों का बाइकआउट करने पर जोर दिया। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और हिंदूज़ फॉर ह्यूमन राइट्स ने अपने इत्तेहादी ग्रुपों के साथ भारत को खुसूसी तशवीश का हामिल मुल्क करार देने की बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी के बारे में अमरीकी कमीशन की सिफारिशात पर अमल न करने पर मायूसी का इजहार किया। भारतीय अरकान पार्लियामेंट शोरा और कालिम निगारों ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में अक़लियतों ख़ुसूसन मुसलमानों के खिलाफ भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की है। भारतीय इनकलाबी शायर इमरान परपातगड़ी ने कहा मैं हूं कश्मीरी जैसे अपने शेरों में भारतीय हुकूमत के मसलूम कश्मीरियों के खिलाफ जुल्म जबर को उजागर किया। उन्होंने कहा कि फ़िस्ताई मोदी हुकूमत अक़लियतों और कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की मुर्तकिब हो रही है। चीन और सऊदी अरब ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए सकाफ़ती तबादला और आवाम के आवाम से राब्ते बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया है। ये मुफ़ाहमत दायरे-ए-आज़म में चीनी सदर शी जिनपिंग और सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात में हुई। चीन के सदर शी जिनपिंग ने चीन के अरब और खलीजी मुल्कों के साथ ताल्लुकात को नई सतह पर ले जाने के लिए खलीज ताउन कौंसिल और अरब रहनुमाओं के साथ काम करने के अज़्म का इआदा किया है। उधर सऊदी और चीनी कंपनियों ने इंफॉर्मेशन, तामीरात, नक़्ल हमल, तिब्बी सनत, हाउसिंग और तामीरात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए सरमायाकारी के 34 मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। अरब वफूद ताउन और तरक्की के लिए रियाज़ अरब चाइना सरबराह इजलास में शिरकत के लिए रियाज़ पहुंचना शुरू हो गए हैं। एक बयान में अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि चीन और अरब ममालिक के दरमियान ताउन में बड़ी कामयाबी की राह हमवार हुई है। इसराइली फ़ौज ने आज मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जनीन में जारियत के दौरान 3 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा और अब पेश है खेलों की खबरें। कतर में जारी फीफा आलमी कप 2022 का क्वार्टर फाइनल मरहला कल से शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल के पहले मैच में कल क्रोएशिया का मुकाबला ब्राजील से होगा, जो पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक शाम 8 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का दूसरा क्रिकेट टेस्ट कल से मुल्तान में शुरू होगा। मैच पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आसिम ने कहा है कि मैच सूरत-ए-हाल और प्लान के मुताबिक खेला जाता है, जबकि शिकस्त के बाद कोशिश की जा रही है कि मैच का दबाव न लिया जाए। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में आई न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कौमी टीम में तब्दीलियों पर गौर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम फास्ट बॉलर्स के दुरुस्त इंतखाब पर तवज्जो दे रहे हैं। इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट बेन स्टोक ने कहा है कि उनकी टीम को पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट में बेहतर नतीजा हासिल करने के लिए मजीद मुश्किल फैसले करने चाहिए। उन्होंने कहा कि धुंध और रोशनी के बाद खेल का दौरानिया कम हो सकता है। इंग्लैंड ने मुल्तान में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए मार्क वुड को टीम में दोबारा शामिल करने का फैसला किया है। पंजाब के खेलों और नौजवानों के अमूर के वजीर मलिक तैमूर मसूद ने बॉक्सिंग चैंपियनशिप उस्मान वजीर को नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में 10 लाख रुपए के चेक से नवाजा। रेडियो खबरनामा जारी है और अब पेश है तिजारती खबरें। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर मोइनुल हक ने बीजिंग में पाकिस्तानी बैंकों के नुमाइंदों को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के गुज़िश्ता माह दौरे चीन के नताइज से आगाह किया। आज बीजिंग में मुलाकात के दौरान उन्होंने पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी ताल्लुकात को मजबूत बनाने और चीन के लिए बरामदात में इजाफे पर तबादला ख्याल किया और बैंकों के नुमाइंदों से उनकी तजावीज़ लीं। पंजाब की हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक अदायगी के निज़ाम के जरिए अब तक 135 अरब रुपए से ज़ायद रिकॉर्ड टैक्स महसूलात जमा की। ये बात आज लाहौर में पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के चेयरमैन सैयद बिलाल हैदर की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास में बताई गई। पाकिस्तान में वियतनाम के सफ़ीर ने कहा है कि पाकिस्तान और वियतनाम के दरमियान सालाना तिजारती हजम साल 2023 के आखिर तक $80 करोड़ से $1 अरब तक पहुँचने का इम्कान है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया कि KSE 100 इंडेक्स 167 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 41,651 पॉइंट्स पर बंद हुआ।
मजमूई तिजारती हजम 227 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 221 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही: अमरीकी डॉलर 221 रुपये 91 पैसे और कीमत फ़रोख्त 226 रुपये 90 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद 270 रुपये 57 पैसे और 276 रुपये 67 पैसे। यूरो 233 रुपये 48 पैसे और 238 रुपये 28 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,42,661 रुपये रही। ये थी तिजारती खबरें और अब सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। फाजिल हुसैन मूसवी की हीलिंग दी वोंड्स के उन्वान से नुमाइश पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद में शुरू हो गई। खताती, इलामती फन और दिल को भाने वाले मनासिर पर मबनी फन पारे नुमाइश में रखे गए हैं। फाजिल मूसवी का ताल्लुक बलोचिस्तान से है, जो बसरी को किस्सा गोई के माहिर हैं। नुमाइश इस माह की 15 तारीख तक जारी रहेगी। इस्लामाबाद टेस्ट दी कैपिटल सिग्नेचर फूड फेस्टिवल कल F9 पार्क इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा, जिसका मकसद ग़िज़ाई और मौसीकी की सनत की मदद करना है। फेस्टिवल में 80 इक़साम के खाने, मौसीकी के प्रोग्राम, मुख्तलिफ फनकारों की परफॉर्मेंसेज और दीगर तफरीही सरगर्मियाँ शामिल हैं। ये फेस्टिवल 2019 से अब तक मुनक्किद होता चला आ रहा है और ये इतवार तक जारी रहेगा। फन एंड आर्ट प्रमोटर्स की जानिब से मायानाज अदाकार नदीम के एजाज में इस माह की 17 तारीख को प्रेस क्लब ऑडिटोरियम हैदराबाद में गुलकारी के मुकाबले का इनेकाद किया जाएगा। पाकिस्तान अकादमी अदबियात और अदबी तंजीम ज़ाविया मंगल को इस्लामाबाद में अक्सी मुफ्ती की किताब मोहम्मद इन मॉडर्न टाइम्स की इफ्तिताही तकरीब की मेज़बानी करेंगे। पाल के साबिक चेयरमैन इफ्तिखार आरिफ तकरीब की सदारत करेंगे। ये तो थी फन की दुनिया से कुछ खबरें और अब आपको लिए चलते हैं साइंस की दुनिया में। माहिरीन का कहना है कि रोज़ाना वर्जिश करना जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है, जिसकी वजह से दिमाग में हार्मोन्स को मुतहर्रिक रहते हैं और इससे मूड और सीखने के अमल में बेहतरी आती है और याददाश्त पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। माहिर सेहत डॉक्टर रूबी रफ़ीक ने APP से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रोज़ाना वर्जिश करने से दिल का दौरा पड़ने, ज़हनी तनाव और दीगर दिमागी बीमारियों के ख़तरात कम हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि वर्जिश के बेशुमार फ़वाइद हैं और इससे बुलंद फ़िशार खून, ज़ियाबतीस, सरतान, याददाश्त ख़त्म होने के, ज़हनी तनाव और दीगर बीमारियों पर काबू पाने में मदद मिलती है। बीमारी की रोकथाम के मराकज़ मुस्तनद ज़रिए के मुताबिक अमरीका में हर 5 में से 2 अफराद का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। हाई कोलेस्ट्रॉल से दिल की बीमारियों के खतरात बढ़ जाते हैं। ये थी साइंस की खबरें और अब मुल्क भर में मौसम की क्या सूरत हाल रही, जानते हैं माहिर मौसमियात इमरान सिद्दीकी से। आज रात और कल बालाई इलाकों मानसेरा, एबटाबाद, हरिपुर, मालाकंड, चित्राल, दीर कोहिस्तान, सवात, कुर्रम, इस्लामाबाद, मरी, गलियात, खिता पोठोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश, बूंदाबांदी और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। मैदानी इलाकों में धुंध का सिलसिला जारी रहेगा। आज सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि स्कर्दू में -7 डिग्री रहा। आज इस्लामाबाद में कम से कम 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि मरी में 3, लाहौर में 8, कराची में 13, पेशावर में 5, कोयटा में 2, मुजफ्फराबाद में 4, गिलगित में -3 और श्रीनगर में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर आज़म ने टांक और डेरा इस्माइल खान अज़लाम में सैलाब ज़दगान के लिए तामीर शुदा घरों का आज इस्लामाबाद में इफ्तिताह किया। मनसूबाबंदी के वजीर ने कहा है कि सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए पाकिस्तान का लाहे अमल पेश करने की खातिर अगले महीने आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी। आज सार्क मंशूर के दिन के मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान सार्क के अहया के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे अजहर मुगल, सुपरवाइजर शोबाए उर्दू शबनम बट, मुदीर होम डेस्क यासिर असलम, मुदीर फॉरेन डेस्क आयशा इफ्तिखार, मुदीर खेल की खबरें इलियास सफदर, मुदीर तिजारती साइंस और फन की खबरें रिजवान खान, कोऑर्डिनेशन एडिटर आयशा इफ्तिखार, मुदीर आला गजनफर अजीज खोखर, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा, पेशकश शोबाए खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk
اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور مجاہد خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔